Hello, everyone. You're most welcome to my podcast, Special Hero. And guess who we have today? Yes, another parent who became special because the situations were special for her. We have Ms.Sangeeta Jain, who is a special need mother. And this is not enough, introduction for her. She was very happy in her heaven, and was expecting child as just any Indian mother or, a woman. But then when the sun arrived, it was different. The life was different. Initially, it was must be hard. Sangeeta will definitely tell us. But she has overcome, and she is one of the, most vocal person about people with special needs. And she has spoken about this in UNO in 2019, and she was the only second Indian to do the same. I'm very, very proud to talk with Ms. Sangeeta Jain. Sangeeta, you are most welcome as a special hero. Please share your journey. How was it when you were expecting your child, and how was the journey? Thank you so much, Abhilasha. First of all, for inviting me and speaking on this platform. I think my story is just the same as any other mother would have on who's having a special needs child. Correct. So we all try and do our best for Yes. whatever we can do, depending on our resources, potential, and whatever that we have. Yes. Then, so your son was born and everything was good, I guess, right? After a very painful and careful pregnancy, because you had a lot of miscarriage, as you said. But when the son was born, everything went fine. Yeah, we were on cloud nine, like how it is in the Indian families. Correct. So बिल्कुल complete family, सब कुछ बहुत अच्छे, सब बढ़िया. और पहले 2-3 महीने में कुछ थोड़ा सा महसूस हुआ कि वो सोशल स्माइल नहीं दे रहा. 2.5 months and I हम जब जाते हैं रेगुलर विजिट्स पे अपने पीडियाट्रिशियन के पास, so I asked her कि स्माइल नहीं करता जब इसे बुलाओ, तो अभी तो सोशल स्माइल आ जाना चाहिए. I don't know how you were expecting this, like at 2.5 and 3 months, that he should smile and he should call you mama. No, not call mama, but then definitely when I'm calling, he should interact with me, should At look two and a at half me, months. and Okay. do all those things, because I मतलब like मैंने अपनी बेटी and सबको मैं देखती थी कि जब बुलाते थे तो वो देखते हैं, स्माइल करते हैं, एक्साइटमेंट शो करते हैं, तो जो मुझे थोड़ा अपने बेटे में मिसिंग लगा. I mean, like it was not zero, but तो then it's like boys different होते हैं, and then my pediatrician said like सब तो ठीक है, you're a hyper mom. And I was labeled as a hyper mom somehow, because I was too particular about my kids, and with my daughter also, I guess. बहुत खाना पिलाना, तो मैं थोड़ी अपने बच्चों के बारे में particular थी. और फिर उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा चला. 3 महीने के बाद में ये पहला डाउट था, लेकिन फिर उसके बाद में लाइफ वेंट ऑन वेरी वेल टू से दैट ही वाज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, बेबी आई वुड से, जो 9.5 months में चला भी, बोलना भी बहुत जल्दी शुरू किया. बट इफ आई लुक बैक, आई वुड से ही वाज he had echolalic speech. He was like repeating. He was parroting. He was Yes, parroting something. yeah, Yes. he was parroting. So, and parroting in a way like पूरा paragraphs. In fact, उसको तोता बुलाया भी जाता था, exactly as आपने बोला parrot. तो उसको तोता बोलते थे, और कि जो उसको बोलेंगे वो पलट के बोलेगा. तो पर लेकिन फिर भी इतना ज्यादा महसूस नहीं करता था, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत सही चीजें बोलता था. जैसे कि अगर उसको कुछ चाहिए किचन में आकर, वो ये कहता था, आपको क्या चाहिए, आपको मैंगो चाहिए, अच्छा वेट करो, मामा वॉश करेगी, कट करेगी और आपको देगी. एंड इतना 1 साल कुछ, एक मतलब आई डोंट नो, मे बी अराउंड अ ईयर, 1 साल 2 महीने का कुछ होगा. तो इतना स्पीच भी बहुत अमेजिंग लगता था. बहुत अमेजिंग रियली. और विद हिज दादी ही एग्जैक्टली न्यू कि मुझे मंत्र बोलना है, नवकार मंत्र, वी आर जैन्स, एंड देन भजन बोलने हैं,
और दादू के साथ पंजाबी पोएम्स बोलना है, कुछ राइम्स बोलना है मेरे साथ, ही वुड डू ऑल दोज राइम्स। एंड व्हेन आई वाज टीचिंग माय डॉटर हु इज एल्डर टू हिम, तो वो साथ में बैठा रहता था और नोटबुक लेकर कुछ कुछ सुनता भी रहता था। एंड वन डे ही वाज scribbling on a notepad, because you know how we mothers do it, like दोनों बच्चों को साथ में क्या क्या अच्छा तुम हाँ, लिख रहे हो. So then I just said like, Sudhi, one likh raha hai. And then he said two. I said two. Then he said three. And then we went on till 20, and he was wow. 1 year, 3 months old at that time. 1 year, 3 months old and Three knowing months. 1 to 20. Yeah. एंड ऐसे ही फिर कुछ कुछ चीजों में हम देखना शुरू किया, तो उसको ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो तो बिस्किट बन गया Genius. फैमिली का, कि पता नहीं कहाँ से, गर्भ से ही सब सीख कर आया है टाइप ऑफ बच्चा जो Absolutely. बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल कि ही बिल्कुल. इज अ ब्रेनी चाइल्ड इज. हम्म. एंड वी वर ऑन बिल्कुल बहुत खुश हम, जैसे कि पता नहीं, ओ माय गॉड वी सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. सो आई थिंक तब तक लाइफ बहुत अच्छी चली. हम्म. It was 1 year, 8 months. I'm not too sure whether the MMR vaccine has a connection or not, but somewhere around that time only, कहीं ना कहीं उसको बुखार आना शुरू हुआ, बहुत हाई फीवर, लाइक 104, 105, 106. एंड उसको कुछ ईयर इन्फेक्शन था, थ्रोट इन्फेक्शन था. एंड उस दौरान जब उसके हम ब्लड टेस्ट कर रहे थे, तो टीएलसी डीएलसी इतने ज्यादा डिस्टर्ब आए शुरू हुए कि माय डॉक्टर गॉट वरिड एंड थॉट कि एक सेकंड के लिए कि शी टोल्ड मी लाइक डोंट गेट स्कैर्ड, बट यूजुअली इतना टीएलसी डीएलसी जो अप एंड डाउन होता है ना, वो यूजुअली ब्लड कैंसर में होता है. तो maybe this is just a viral, but I still want you to go to PGI hematology. And you know, so as a mother, Oh, it very was good. like a big thing. We went, but somehow I had this connection. My child is fine. कुछ हम्म. नहीं. I usually I have a lot of intuition, so I think I run by my intuitions. It's like नहीं, कुछ नहीं है. बिल्कुल नहीं डरी मैं. एक्चुअली मैं जब गई वहां गए, हर 10 दिन के बाद उसके ब्लड टेस्ट होते थे टू सी दैट कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा हम्म. है. एंड देन डॉक्टर से नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट फेज में है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायरल अटैक, वी रियली डोंट नो व्हाट इट इज. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वो कुछ 3-4 महीने का फेज रहा हमारा, जहां पर मेरे को डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट्स के लिए जाना था. तो हम्म. उन्हीं उसी दौरान में व्हाइल ही वाज रिकवरिंग, आई शेयर्ड माय कंसर्न, लाइक कि ये अब बोल नहीं रहा, ये अब Started with अपने this. रूम में रहता है, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया. एंड मुझे उसके लिए डांट भी पड़ी घर वालों से बहुत ज्यादा, कि हम्म. हाँ बीमार होके चुका है और तुमको ऐसा लग रहा है कि वो बोल नहीं रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. एंड आई हम्म. सेड आई डोंट नो, मतलब कुछ थोड़ा सा. सो I Intuition. think I still remember Dr. Marwaha was his doctor, and he said like अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप यहाँ तो आ ही रहे हो, मैं लिख देता हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप. हम्म. एंड एवरीवन वाज सो एंग्री विद मी, आप क्या कर रहे हो, 1 year 10 months बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेकर या जाओगे, आई अंडरस्टैंड. साइकोलॉजिस्ट के पास लेके साइकोलॉजिस्ट जाओगे. के पास. And to an extent that I heard from my family, uh, telling to my husband, इसको अपनी वाइफ को साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो, ये कुछ कुछ ज्यादा ही सोचती रहती है. सो हम्म. उस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरी चिंता बढ़ रही थी उसको देख देख के. और अल्टीमेटली बिकॉज आई कुड सी ही इज या. ड्रॉपिंग हिज माइलस्टोन्स. सो बोल भी नहीं रहा, ये भी नहीं कर रहा, खेलने नहीं जाता, कमरे में बंद रहता है, कुछ जैसे पहले जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी वो सब कुछ नहीं था. तो मतलब कुछ कुछ इस तरीके से इतनी सारी चीजें थी. मेरे को ये कहीं ना कहीं पे लगा कि मुझे एक बार जाने दो देखने के लिए. सो आई वेंट टू पीजीआई ओवर देयर. आई मेट माय उस डिपार्टमेंट में जहाँ उन्होंने रेफर किया, और वहां जाकर मैंने बोला, तो उन्होंने बोला पता नहीं, वी कांट से एनीथिंग, इज टू यंग, इज जस्ट 1 year 10 months. हम्म. तो बोल नहीं सकते, पर आप रिकॉर्ड रखिए कि क्या कुछ और माइलस्टोन भी अ, गिर रहे हो हैं, रहा है या फिर और हाँ कि रिग्रेस आपको क्या ऐसा ही लग घट रहा रहा है. है. जस्ट कीप अ डायरी एंड राइट. कीप रिकॉर्डिंग वट एवर यू आर फीलिंग राइट. हम्म. So fortunately, I met my friend over there, who was my college friend, who was there in the psychology department. And हम लोग फिर वो कुछ शादी के बाद में हम मिले भी बहुत अरसे बाद. आई एम फ्रॉम देहरादून, सो
तो हम बहुत अरसे, and I was very surprised, oh you are here and you are here, and then after long years, Yeah. like 7-8 years, I met. तो वो कुछ ऐसा हमें हुआ, तो then we met and then I said, what do you think? Said, I'm not sure, but कुछ ना भी नया है, हम autism के बारे में बोलते हैं. And I said, what is autism? Oh, And wow. she said, पता नहीं, I'm also not very sure about it. हम लोगों को भी ज्यादा नहीं मालूम है, पर ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि रिग्रेशन आता है autism में. So is it like, is it like very serious or something? It is like, हाँ, they said normal हो जाता है, normal है ना, मतलब like isn't usually with autism people don't lead a normal life. But I still couldn't understand at that time, and Very good. Yeah. और आप अभिलाषा, मैं आपसे बात कर रही हूँ उतनी पुरानी, 22-23 साल पुरानी बात, जब हमारे पास गूगल बाबा नहीं होते थे, स्मार्टफोन्स Hmm. नहीं होते थे. Correct, correct, correct. सही बात So है. that was the era of no mobile phones. No Google, yeah. It was the time of pager actually. आप, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा कि नहीं, वो एक पेजर होता था फिर पेजर होता था. I know. तो वो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी, फिर एक फोन्स भी आ गए थे, आ रहे थे थोड़े थोड़े बड़े आ बड़े, रहे थे थोड़े बहुत बड़े थोड़े, बड़े पर फोन, हाँ, रॉक जैसे बड़े 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 से, यस. मोबाइल आ रहे थे. हाँ तो वो सभी के पास तो नहीं होते थे, हाँ हाँ. बहुत रेयर होता था किसी के पास. करेक्ट करेक्ट. वो उस समय स्टेटस का ये सिंबल होता था कि मोबाइल है इनके पास. हाँ, मोबाइल है इनके Correct. पास. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट what was going. It was not like you get an instant information, you No. text it, so the Google will even suggest you, do you mean this? So Hmm. मेरे लिए बहुत मुश्किल था. लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाके ढूंढना शुरू किया, कुछ ऑटिज्म के बारे में नहीं पता चला. In fact, I did not know the spelling of autism. Oh my God. So Oh my I was looking like autism, like OT OT. something, and like all my variations I was trying, and then I did find something about autism in one of the books, psychology books, where it said like no eye contact, no social, no emotional. This is a very small paragraph, and I was like, I don't know. Then I went back to my pediatrician and I asked her कि इसको क्या autism हो सकता है? And he said like, honestly speaking, हमें भी कुछ autism के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ाया जाता है. We do not know much about autism. Oh my God. And she was very honest, and I really Yes. respect that she said it कि हमें नहीं, मुझे ज्यादा autism के बारे में कुछ भी नहीं मालूम. और that's how my struggle started. और मुझे कुछ 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 और 1-2 महीने कुछ ऐसा ही, वही मेरे ख्याल से जब उसका ये सब कुछ शुरू हुआ, तो मैं, जैसे होता है ना कि पूरा उथल पुथल उथल मच गई बट मेरे यू दिमाग बीइंग इंट्यूटिव पर्सन आपको लग गया होगा कि में. ये हाँ. कुछ कनेक्शन है, बिकॉज सिमिलर थिंग हैपेंड विथ मी. So हम्म. it happened in Google era, but because my daughter is younger, but the similar thing happened in me. So I know कि आपको भी intuition हो गया होगा कि कुछ तो connection है यहाँ पर. I understand. मन कह रहा था कि नहीं, हम्म. सब ठीक है, कुछ नहीं है, और दिमाग कह रहा था पता नहीं, नहीं, कुछ तो लग रहा है. तो लग रहा है. So that was the time I, said कि यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, let's go to Delhi and figure it out. So पहले तो बहुत इस चीज के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट था घर में, नहीं ऐसा नहीं होता, कितना छोटा है, 1 year 10 months का है, और क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो. पर लेकिन फिर आई स्टिल थिंक मेरे घर में ही किसी एक, वन ऑफ माय रिलेटिव्स, माय के, मतलब लाइक हमारे रिलेटिव ने, किसी ने कहा कि अगर वो इतना बोल रही है तो दिल्ली चले जाओ, हमारे पास आ जाओ, रह लो. ही वाज देवर फ्रॉम Delhi, Faridabad only. So हम्म. I went to AIMS, I went to all the leading pediatricians, Gangaram, I don't know where all I went, and जिसने जैसे बोला ना, यहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो. Finally, I went to a neurologist in Gangaram, and there he said, ma'am, autism है इसको. And कहीं ना कहीं पे तो सुना हुआ था वर्ड, और एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया था तब तक. I said, करेक्ट करेक्ट. पर ना अभी ये भी करता है और ये भी करता है ना. I was like, no, no, like, and then she's like, पर he's on spectrum. He was very sure about it. And I still उस टाइम पे एम्स में भी मैं थी, तो मैंने वहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने भी मेरे को बोला कि आप ऑटिज्म के लिए प्लीज इसको चेक करो. So I think my son then went to the psychologist over there in the AIMS, who was wearing a big red big B, and
मतलब थोड़ा तैयार वैयार होती थी। तो मुझे उसने बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट दिया, उसको देख देख के जो बोला वो किया। जस्ट अच्छा। लाइक he is doing everything, he's looking at me, he's doing everything. I really don't know because he's very good with puzzles and shape sorters, और जो साइकोलॉजिस्ट उस टाइम पे वही दे रहे थे। वही वही और वो। तो उन्होंने बोला ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं करो। इनफैक्ट मैंने ये बाद में रियलाइज ओवर द पीरियड, आफ्टर ऑल दोस ट्रेनिंग शुरू किया कि बिंदी काजल रियली फैसिनेट्स हैं, एंड दैट्स वेयर आई थिंक आई स्टार्टेड डूइंग इट विद माय सेल्फ। हाँ। सो मुझे लगा कि आई मीन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये इनको देखता है सब कुछ करता है, सो प्रोबेबली वो काजल और वो बिंदी उसको अट्रैक्ट करता है, एंड देन ही लुक्स एट इट और whatever, I don't know what Response was better when you were wearing bindi and kajal. bindi Acha. and kajal. I don't Okay. know what, it was just a kind of an observation Yeah, which yeah. worked for me, हाँ हाँ. which worked for me. So I think that was like, फिर वहां से कुछ कुछ पूछना, अब क्या करें अब क्या करें, मतलब ठीक है पता चलो आपकी एक बात मान ली रो धो के कि ऑटिज्म है, लेकिन अब करें क्या, कुछ तो करना भी तो होगा इसके अगेंस्ट। लाइक पता नहीं, आई डोंट नो, गो एंड सर्च फॉर इट। कुछ तो है, डैन प्रोटोकॉल चलता है, ग्लूटेन फ्री केसन फ्री डाइट होता है, और एक मदर है मेरी बरुआ एक्शन फॉर ऑटिज्म, तब एक छोटी अच्छा. सी जगह में चिराग दिल्ली में एक थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कुछ वो मदर है जो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आई है, और वो बाकी मदर्स को गाइड करती है। सो ऐसे कहाँ ढूंढेंगे उनको। यहाँ पे मतलब ये सब कुछ गूगल के पहले और असेसमेंट के पहले और थेरेपीज के पहले की बात. पहले की This बात is like ages ago, not because your है। son is still very young, but it sounds like, jab, when I interact with parents now, so it starts with that when we started therapy, we Googled it, so it is sounding so much Yeah, historic almost. yeah, I know. So for me, I जब हम वहां पर, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं मालूम कैसे वो मिले और कहा कैसे हम वहां पहुंचे ढूंढते ढूंढते उनको, and I interacted with her. She's a very positive persona, and मैंने बोला, and she said, I'm so happy to see such a small child. Hmm. क्योंकि मेरे पास इतने छोटे बच्चे कभी आए नहीं है। Correct, correct. So and he was like, I said, yeah, तो मैंने बोला कि yeah, let's work. And then the only thing I asked from her was, if I do this training, what you're suggesting to me, the therapy, whatever, उस टाइम पे जो थोड़ा उन्होंने ABA टीच, और उस टाइम पे वो जो सीख कर आई थी यूएस में, Wow. और तो मैंने कहा अगर मैं कुछ सीखूंगी और कुछ करूंगी तो अगर ये ऑटिस्टिक नहीं है तो ये ऑटिज्म ऑटिस्टिक बन तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ये ऑटिस्टिक नहीं भी है तो दीज आर जस्ट द टीचिंग स्ट्रैटेजीज where we Hmm. teach children to learn language and other things, cognitive concepts. So it's perfectly fine, don't worry about it. And I came back home चंडीगढ़, थोड़ा अरेंजमेंट किया मेरी डॉटर के साथ, ऐसे लाइक मैं तो 3-4 महीने के लिए भी दिल्ली जा रही। सो चंडीगढ़ से दिल्ली आई, वो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। आई स्टेड देयर, डिफरेंट रिलेटिव्स, इट इज नॉट वेरी इजी, छोटे बेबी को लो, सुबह निकलो। फिर मुझे लगता है उस टाइम पे मैंने सब कुछ ट्राई किया, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, रेकी, होलिस्टिक मेडिसिन ये होती थी उस Correct. टाइम पे। हाँ, और क्या और जो सब कुछ कोई try कह रहा था तो किया. ग्लूटेन फ्री केसन फ्री किसी ने कहा तो वो भी शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। लेकिन Wow. फिर कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिखी भी वहां पर वो 3-4 महीने हो चुके थे। सो मैंने पूछा भी कि क्या हम यहीं रह जाएं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। ऐसे नहीं, अब तो तुमने भी तो सीख लिया क्या करना है, अब यही तो करना है, अब वापस आओ और Hmm. करो। सो समहाउ आई केम बैक, and my son again started, फिर से स्लाइड बैक, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, Hmm. पर अगेन थोड़ी सी जो स्पीच डेवलप हुई थी वहां पर, फिर दोबारा स्लाइड बैक किया। अच्छा. मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, मे बी इट वाज दैट सपोर्ट सिस्टम ओवर देयर, मे बी Hmm. जब हम, मुझे ऐसा भी एक महसूस होता है कि शायद जब मैं वहां थी दिल्ली में तो मेरा एक ही काम था, दैट वाज टू बी विद माय सन एंड Right. do all kinds of stimulation. But when I came back home, I had family,
I had house to take care of, my daughter, Everything. everything. The life got into that normal. So शायद मेरी तरफ से कहीं ना कहीं पे मेरे बेटे के लिए जो टाइम है 24/7 से कम हुआ, शायद वहां इम्पैक्ट आया. आई रियली डोंट नो व्हाट. सो अगेन ही स्लाइडेड बैक, बट कुछ cognitive concepts and all में वो he was doing okay. But अच्छा. the speech deteriorated. Otherwise, he became toilet trained and everything, whatever I was trying and doing. वो सब कुछ हो रहा था. ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो हो गया था, पर जो स्पीच एक, वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा हाँ स्लो या फिर पीछे हो गया. हाँ, वो वाला पार्ट थोड़ा पीछे हो गया. हम्म. वही धीरे धीरे द जर्नी हमने रेगुलर स्कूल्स में डाला. अच्छा. He went to regular schools as well. स्पेशल स्कूल्स उस टाइम पे होते नहीं थे, राइट. नहीं थे, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को पता था. अवेयरनेस ही नहीं था. करेक्ट. My son was only 2 year 3 months. जब तक मैं वापस आई 2 year 4 months का हुआ था वो. और तो वो टाइम रहता है प्ले वे में डालने के लिए. सो प्ले स्कूल का. brought him into the play way. और वहां पर कुछ थोड़ा उन्होंने भी शायद काउंसलर्स वगैरह ने ऑब्जर्व किया कि वो अपने टॉयज के साथ खेलता है और बाकी बच्चों के साथ वह नहीं करता. सो शी कॉल्ड मी कि और मैंने उस टाइम पे बहुत ओपनली नहीं बताया था कि ऑटिस्टिक है, क्योंकि कुछ अभी एक नहीं फियर चलता. था, एक डर था कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे. करेक्ट. हाँ. बिल्कुल सही, सो बिल्कुल सही. मैंने उस टाइम पे नहीं बताया. देन शी व्हेन शी आस्क्ड मी, आई वाज ऑनेस्ट. आई सेड हाँ, इसका डायग्नोसिस अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया. उन्होंने उस टाइम पे एक टर्म होता था PDNOS, लाइक परवेसिव हाँ. डेवलपमेंटल नॉट एंड राइट. otherwise specified. So यस. they have not specified him as autism, but there's something that you, because they say that हम 3 years से पहले डायग्नोसिस नहीं दे. आजकल स्पेक्ट्रम के अंदर वो PDNOS चला गया वो. हाँ, वो चला गया. स्पेक्ट्रम. हाँ. That was the first thing that was written on my son's card. Yes, yes. I think my daughter also had the same thing. Correct. Oh. Spectrum plus PDNOS. तो I was thinking दे दो डायग्नोसिस क्यों है? वो दो डायग्नोसिस की क्या जरूरत है? But then yeah, now I don't see anyone saying this PDNOS. No one is saying. अभी तो जो नया आया है, no one is saying Asperger, no one is saying. It just comes under the umbrella of ASD. Yeah, true. तो वो फिर मैंने बोला पता नहीं. तो उन्होंने बोला, the counselor said me, ma'am, Mrs. Jain, you are in a wrong country. ऑटिज्म के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है. आपके पास पैसे है तो आप अमेरिका जाइए, वही एक कंट्री है जो कुछ ऑटिज्म के लिए कर रहा है. और वी डोंट नो. तो मैंने उनको बोला कि वी कांट हेल्प. तो मैंने बोला बट टेल मी वन थिंग, लाइक इज ही काइंड ऑफ थोड़ा क्लासरूम में कुछ ट्रेनिंग लेकर आई हूँ, सो आई टेक केयर ऑफ हिज नीड्स एट होम, बट आई रियली वांट हिम टू गो एंड इंटरैक्ट विद द अदर किड्स. और क्या अगर वो कुछ कोई उसके कुछ बिहेवियर्स हैं, वो कुछ क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रहा है या बच्चों को कुछ तंग कर रहा है, पुश कर रहा है या कुछ वो करे. तो बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सच ए स्वीट बॉय, goes and plays with, puts everything in order. जब रैंक टाइम होती है तो सबसे पहले जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है एंड ऑल. तो आई सेड देन आप प्लीज रखिए इसे यहाँ पर फॉर दिस थिंग. बट आई थिंक हर एटीट्यूड वाज नॉट वेरी पॉजिटिव. एंड मी एंड माय हस्बैंड देन लेटर ऑन डिसाइडेड कि जहाँ पे टीचर्स पॉजिटिव नहीं है, वहां पर इवन इफ दे नॉट सेइंग अस टू गो, पता नहीं इज इट अ गुड पॉइंट टू हमारे बेटे को वहां रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो उसको एक लेबल की नजर से देख रहे हैं और नहीं हम तो हेल्प नहीं कर सकते, हम तो हेल्प नहीं. Now the scenario is definitely different for that school Much also. different, much different. Yeah. Yes. So I took my child and then again the minute I said autistic, so nahi. Then finally we definitely found one very good school, Rainbow, and where we had this बहुत उनको मैंने ओपनली बताया, सारा कुछ कहा कि ऐसे हम लोगों मेरे बेटे को ऑटिज्म है. दे accepted and she heard my story. The principal was very understanding, and she started saying कि आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है the way you are speaking about your son and want to help him, so we'll definitely take him. So that's where my son went and I introduced quite a bit of systems over there to help my own son कि आप कैसे कर सकते हो peer system, buddy system. So because I wanted my son to interact, so
and then she said, and I'm really very glad that this principal wanted to listen to me what I had to say. Hmm. Then it's like inclusion के लिए आपको क्या लगता है? So I said these are the few things that we can work on the inclusion, which I will be good for your children also and will be helpful for mine. It's not that कि हम उसको करेंगे. So I introduced peer and buddy system in Wow. back 20 You're a years. pioneer, Sangeeta. I have Yeah. to say that. You're a pioneer. मतलब So we are talking about the era कि जहाँ पर ना थेरेपिस्ट है ना मतलब स्पेशल स्कूल्स भी rarely कहीं दिखते हैं, तो you have actually came up with this idea on your own for your son. Wow, so amazing. तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी था, तो ऐसे लाइक देखो सबके लिए रेनफोर्समेंट होनी चाहिए, वो क्यों करेंगे? तो देन ऐसा कि जो सुब्रत को इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने बैग में से बॉटल निकालो, टिफिन बंद करके रख दो, सुब्रत के साथ जो बैठेगा वो 1 वीक के लिए मॉनिटर होगा क्लास। तो एवरी वीक एवरी चाइल्ड वुड से मैं सुब्रत के साथ बैठूंगा, मैं सुब्रत के साथ बैठूंगा। And I said, this is how you are motivating the children to learn to support other people. Yeah, yeah. And it's not like just कि मेरा बच्चा दूसरे कर रहा है, but how you developing that support system, skills and everything. So Hmm. I think that was one of those most beautiful period in the school where No doubt. and I No. could also see a lot of changes in my son. He would go and sit with children at the birthday parties and like they would call him. तो अच्छा रहा कुछ साल वहां पर, it was but a play way. और फिर धीरे धीरे he was becoming taller, धीरे धीरे छोटे बच्चे आने शुरू हो गए, तो 2-4 साल में लगने लगा कि अभी यहाँ से थोड़े वो हो रहा है और वो बड़ा भी लग रहा है, एंड द पेरेंट्स वर आल्सो फीलिंग बिट, होता है ना कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू, Correct. चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, Correct. children are very good and innocent, but I think Parents were not. yeah, as parent you always want your child to be associated with someone Hmm. who's better than Brighter, better. brighter, Yeah, better, yeah, yeah. smarter, Hmm. whatever. So वो सब कुछ होना चाहिए ताकि मेरा बच्चा उससे सीखे. Correct. तो then the principal also called me कि थोड़ा the parents are coming and telling us like no, not a problem, I totally understand the way you have supported me. And I feel if the principal and the management is understanding, the teachers somewhere also follow the Yeah, of course. lead. और मुझे भी होता था कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर टू प्रोवाइड. वहां से फिर निकले, फिर दूसरे स्कूल में गए, वहां पर इट वाज अ बिग स्कूल, बट तब तक थोड़ा रिसोर्स रूम्स वगैरह एक बड़े स्कूल में, इट वाज अ वेरी बिग स्कूल इन चंडीगढ़ विच काइंड ऑफ हैड अ रिसोर्स रूम जहां पर उन्होंने कुछ 5-6 बच्चे स्पेशल बच्चे रखे थे विच दे वर ट्राइंग टू इंक्लूड एंड ऑल. तो वहां मैंने अपने बेटे को डाला, और पर वो ज्यादा रिसोर्स रूम में ही रहता था, बाहर तो कम ही गया. वहां पे भी कुछ साल रहा. फिर माय सन वाज गुड विद मैथ्स Hmm. एंड रीडिंग राइटिंग भी उसको तब तक थोड़ा बहुत आ गया, like not of his age but he would read write, I taught him everything, तो मैथ्स अच्छा था. तो वहां पर कोई दिन उसको मुझे नहीं मालूम टीचर डांटती थी तो नहीं करता था, तो वन डे प्रॉब्ली आई डोंट नो व्हाट टीचर स्कोल्डेड हिम और डिड व्हाटएवर ही उसने पेंसिल तोड़ा और टीचर के ऊपर मारा. Okay. अच्छा. और आई थिंक दैट वाज द बिगनिंग ऑफ हिज बिट ऑफ डिफिकल्ट बिहेवियर्स. Hmm. तो Hmm. द टीचर वुड से लिखो, लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड देन ही बिकेम अ बिट ऑफ रिबेल. he would tear the notebook, he would throw, and then he would get a time out in his classroom. And I went to the teacher and said like timeout would not work for him because he's not wanting to do work with you. तो आप Hmm. कैसे टाइम आउट देते हो? वो तो टाइम आउट में क्यों हो खुश है, जाता है? हाँ. बहुत खुश है. तो थोड़ा मैं गई वहां पर शायद कुछ टीचर उसने 1-2 बार ऐसे किया. तो अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वहां की भी प्रिंसिपल वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय चाइल्ड, एंड शी कॉल्ड मी बिकॉज ये वहां जाकर प्रिंसिपल के रूम में जाता था, बैठता था और थोड़ी देर के बाद में आ जाता था. दिस इज लाइक ऑन सेकंड फ्लोर, द प्रिंसिपल इज लाइक वेरी बिग स्कूल ऑफ चंडीगढ़. Hmm. तो वहां जाना, इसने बैठना, और वो भी बोलते थे कोई बात नहीं छोड़ दो. आई डोंट नो देयर वाज सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम. इट्स लाइक छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा.
सो द मेड वुड वेट आउटसाइड कि फिर वो मैडम के पास कोई आएगा भी, विजिटर भी आएगा, तो वो बैठेगा, थोड़ी देर बैठेगा, उनको प्यार करेगा और फिर चला जाएगा. So उधर से भी फिर she also said कि this is one child who comes every day to me and I am so fond of him and when I am say ma'am आप मुझे पता है आपने दिल्ली से, और उस दौरान मैंने खैर it was not I had stopped my training part. I was going to Mumbai, to Pune, to Chennai, to Delhi, everywhere, wherever it was the workshop, I would go and attend that, whether it was RDI, whether it was specific teach program, whether it was, कुछ भी जो होता था, मुझे जहां पे भी कोई भी मिलता था, तब तक वो फोन्स भी आ चुके थे. मोबाइल फोन, हाँ तब हाँ, तक फोन्स आ चुके थे. व्हाट्सएप नहीं आया था पर फोन्स हाँ आ गए थे. व्हाट्सएप नहीं आया था, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं बहुत आया पुरानी तो थी। फोन आ गए थे, तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे बहुत कम ही लोग थे उन दिनों जो. SMS का टाइम था वो, हाँ। हाँ, तो कुछ कुछ कर रहे थे, या कोई पेरेंट जैसे बन गए, फ्रेंड्स बन गए, बॉम्बे में कोई फ्रेंड बन गया, कोई वहां बन गया, तो वो वहां का बताते थे यहाँ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, डू यू वांट टू कम एंड अटेंड. सो आई वुड से हाँ हाँ मैं आ रही. तो मैं तब हर जगह, वो भी 7-8 साल जो मेरे थे, मैं नेवर स्टॉप्ड इन टू ट्रेनिंग. आई थिंक आई केप्ट ऑन डूइंग दैट. 5 दिन का वर्कशॉप, 14 दिन का वर्कशॉप, जो भी हम्म। हो रहा है वो मैं एएफए में भी, और जहां जहां होता रहता था. एएफए से तो डेफिनेटली आई वाज टोटली इन टच, तो वहां से भी बहुत कुछ पता चलता रहता था. तो वहां मेरा हुआ एंड देन फाइनली उन्होंने आके बोला कि मैडम मुझे लग रहा है आपको ना दिल्ली चले जाना चाहिए, यहाँ तो वाकई में कुछ नहीं है. एंड आई वाज लाइक आप मतलब लाइक, फिर भी मुझे ये लगा ना ना टोटली बिलीव इन, तो जब कोई टीचर मना करे तो डोंट फाइट विद इट, बिकॉज कहीं ना कहीं पे शायद अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने. अगर मैं यस, फाइट आई करूंगी, एग्री विथ यू। टीचर्स अगर मैं, को आप कंसोल का काउंसिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते, जस्ट और मूव। रख भी लेंगे पर हम्म। फायदा है क्या. फायदा कुछ नहीं, आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माय चाइल्ड्स टाइम सिमिलरली। I can completely agree, understand and agree. Yeah. तो मेरे को हमेशा यही लगा कि कहीं ना कहीं पे फाइट वहां करो जहां पर आपकी, मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए मुझे ये नहीं लगता कि ओके मेरे को इंक्लूजन स्कूल में डालकर ये मेरे, मुझे यही हाँ, लगा कि माय चाइल्ड शुड बी लव. और कहीं ना कहीं पे एएफए की ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रांग थी, जो ये बताते थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर चाइल्ड हैप्पीनेस. child's happiness, exactly. तो उसको इफ खुश चाइल्ड होकर इज रहना चाहिए। हैप्पी, हम्म। यू आर, कहीं ना कहीं वो इनग्रेन हो गया था कि मुझे सिस्टम से लड़ना है, लेकिन अपने बेटे की खुशी की। खुशी को दांव पे लगा कर. करेक्ट। राइट। तो फिर वो जब सोचा कि ठीक है, घर में आके पूरा डिस्कशन हुआ, वेंट बैक टू दिल्ली, दे सेड हाँ आ जाओ, बिकॉज बहुत पुराना एसोसिएशंस भी थे. तो हम्म। लेकिन उसी दौरान माय सन वाज गोइंग फॉर स्केटिंग, स्विमिंग एंड एवरीथिंग ओवर हियर. तो मैंने वहां पर बोला अपने स्पोर्ट्स टीचर्स को कि अभी नहीं आएगा, और अब हम लोग दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, और अभी सूरत स्केटिंग स्विमिंग सब छोड़ देगा. तो वन ऑफ द स्पोर्ट्स टीचर ओवर देयर वाज एसोसिएटेड विद स्पेशल ओलंपिक्स भारत. वो भी तब हाँ नया नया शुरू हो गया था तब. तो हाँ उन्होंने हाँ। बोला मैम एक नया स्कूल चालू हुआ है, आप देखो वहां पे, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो आई वेंट देयर एंड मेट द फाउंडर. शी सेड हाँ ऑटिज्म तो ठीक है, पर हम लोगों के पास ये वाले बच्चे हैं, 35-38 बच्चे थे उस टाइम. हम्म। तो शी सेड कि आई सेड इफ आई वॉलंटियर माई सेल्फ, बिकॉज मेरे पास थोड़ी ट्रेनिंग है, तो मैं कुछ करती हूँ. और this was also not came to me very naturally to me. Before I went to this school, I think I also practiced Buddhism. I उसके तो फिर उन्होंने वहां पे मेरे लीडर ने मुझे, जो हम लोग वहां पे अपनी गकाई लीडर्स में बोलते हैं, तो उन्होंने को मैंने कहा कि मैं ऐसे दिल्ली जा रही हूँ, तो उसने बोला संगीता कब तक अपना भागोगे. This is the unique purpose that life has given you. This is your mission. Do something. Because उस टाइम तक मेरे पास काफी पेरेंट्स घर में आते भी थे, क्योंकि कुछ कोई जाते थे तो बोलते थे गो टू दैट पर्सन, वो काफी तो पता ट्रेनिंग है सब कुछ, ले रही है, हाँ। पता है. तो मेरा हेल्प करने का तरीका हो गया था. तो बहुत सारे पेरेंट्स हिमाचल से या इंटीरियर ऑफ पंजाब से, बहुत सारे पेरेंट्स उस टाइम पे मेरे पास मेरे घर में आते थे. एंड एज अ सीनियर पेरेंट आई वुड टेल देम ऐसे करो, ये करो, वो मत करो. एंड पीपल वुड से लाइक
मेरा बेटा बोलने लग गया, एंड आई समटाइम्स आई वुड वंडर कि मेरे काम करने से ये बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये बोलने से, बताने से, मदर्स को बताने में, मेरे बेटे में क्यों नहीं आ रही है. सो समहाउ बट एनीवेज कभी कभी ये भी दिमाग में आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बिल्कुल बिल्कुल आता ही होगा, वो बिल्कुल. कि अरे ये बच्चा मैंने बताया तो इम्प्रूव किया, हम्म. और मेरे बच्चे के साथ नहीं हो रहा है ये इम्प्रूवमेंट. So, but then this leader of mine says like you are helping so many families over here. Why don't you do something? I said, पहले मैं अपने बेटे का तो कर लूँ. I mean, like I don't want to do for everyone. सबसे पहले मेरा बेटा is important. He says नहीं, uh, आपको ये भी सोचना चाहिए. And that's how I went to the school and met the founder की. और मुझे ये लगा, सबको यही लगा कि थोड़ा यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे दिल्ली, ये भी एक ट्रायल हो जाने दो. So that's how my journey began, and I never looked. You never went to Delhi. No, I never went to Delhi, and that was the beginning of my, I would say, uh, उसके बारे में थोड़ा और बताइए संगीता, क्योंकि ये जो है, मतलब एक तो पहले ये थॉट की, मतलब इससे ऊपर उठना कि मेरा बेटा अगर कर रहा है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट मे बी ही इज नॉट गेटिंग देयर, बट दैट डिडंट स्टॉप यू. आपने दूसरे बच्चों के को भी बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की. तो वो जो आपका जो एफर्ट है, जिसके लिए यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड यू हैव बीन टू यू नो उसके बारे में बताइए. सो अभिलाषा जी, हुआ ये कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की प्रोग्रेस थोड़ी रुकी, क्योंकि जब वो मैंने आपको बताया कि जब वो स्कूल में जा रहा था उसके डिफिकल्ट बिहेवियर्स आने शुरू हुए. सो मैंने उसको बहुत सारी चीजें जो उसकी एकेडमिक स्ट्रेंथ थी वो बंद कर दिया कि वी नॉट स्टडिंग, वी नॉट डूइंग दिस, जस्ट फोकस ऑन द स्पोर्ट्स. तो उस टाइम पे मैं उसको स्पोर्ट्स की तरफ ले गई कि हमें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज ओके, आई एम जस्ट डूइंग. तो वो कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा एक पार्ट एज अ मदर फेलियर आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही थी, पर ऐसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रही है. कुछ एक मदर की जो हमेशा एक, आप भी मानेंगी इस बात पे कि हम हमेशा मदर्स गिल्टी रहती हैं कि हम बेस्ट नहीं दे, हाँ, कि शायद मेरे से ये कमी रह गई. मेरे से कमी रह गई. तो जब कुछ बच्चे और इम्प्रूव करते थे तो ये जरूर महसूस होता था कि मेरा बेटा क्यों नहीं कर रहा, पर जेलसी कभी नहीं हुई. और लेकिन इनफैक्ट कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा लगने लगा कि हम्म. अरे ये बेटा इम्प्रूव, आई एम सो ग्लैड एंड सो ग्रेटफुल कि चलो ये तो कुछ करना शुरू किया. And then I started realizing कि every day started becoming more beautiful, because हम मदर्स कैसे होते हैं कि आज मेरे बच्चे ने कुछ किया तो हम खुश हो जाएंगे. आज यहाँ तक मैं कहूंगी कि आज मेरे बच्चे ने अच्छे से खाना खा लिया तो मदर्स अरे आर हाँ, ब्राइट एंड बिल्कुल हैप्पी, आज बिल्कुल. इसने बहुत अच्छे से खाना बहुत खाया. अच्छे से खाना खा लिया, बिल्कुल सही बात है ये. Those small things mothers usually become very happy. वेरी हैप्पी. एंड तो मेरे लिए क्या हुआ कि आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग जॉयफुल मोमेंट्स, कि जब कोई वैसे बोलता था ना, आई एम सो, मदर्स आके मुझे ऐसे थैंक यू बोलती थी और होती थी, और आई वुड फील दिस इज माय लवली. चाइल्ड. आई वुड हाँ. सी, आई स्टार्टेड सीइंग सुब्रत इन एवरी चाइल्ड. और मुझे ऐसे वाओ. लगने लगा कि अरे ये कर रहा है तो, और मुझे ना अपनी, जैसे कि मैंने अचीव कर लिया, मेरे बेटे ने कर लिया, मेरे बच्चे ने कर लिया, एंड आई वुड रिजॉइस ऑन दैट, एंड आई वुड बी लाइक teary with the mother also, and it's like I'm so glad इसने ये कर लिया. और so I, my life became joyous. It was, आज मेरे बेटे ने नहीं किया उसने कर लिया, जिसने नहीं किया आज इसने किया. So every day became a part of being grateful. Blissful, every And day was blissful now, yeah, because you were helping so many souls and like children. it was not helping. I think they were helping me to make my day Lovely. a better one, not to get dejected and depressed. And कहीं ना कहीं पे ये हो रहा था कि उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि नहीं तो मैं शायद, अगर मेरी लाइफ में वो चीजें नहीं आती तो मैं डिपोनस्ट हो जाती कि मेरा बेटा, तो मैंने तो ये सोचा, ये किया, इतना किया, फिर भी यहाँ पर, और फिर ऐसे हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं. राइट राइट. तो वो लोगों ने, मुझे लगता है, मुझे अपलिफ्ट किया. थोड़ा अपलिफ्ट किया. So I think that was the time I felt कि मेरे लिए वो बहुत जरूरी हुआ. So I went to this NGO बिल्कुल. called And Saurabh. then yeah, NGO, you talk about your NGO please, where you are working so much. Yeah. So Saurabh में शुरू किया काम, वहां पर भी it was not easy actually, because कहीं ना कहीं पे 7-8 years के लिए एज वॉलंटियर वर्क किया वहां पे, टोटल वॉलंटियर. सो अच्छा. पहले 2-3 साल तो
बहुत स्ट्रगल्स रही कि ये कुछ आके बताने की कोशिश कर रही है, एंड देन देयर वाज ऑलवेज क्वेश्चंस रेस लाइक, पर आपने तो कोई ऐसा तो कोई डिग्री नहीं है, यू नॉट आरसीआई एफिलिएटेड, आपके पास बीएड नहीं है, आपके पास डीएड नहीं है, वगैरह वगैरह, यू नॉट अ स्पेशल एजुकेटेड, सो यू ट्राइंग एंड टेलिंग अस थिंग्स, बट आप कर रहे हो। उस टाइम तक मुझे क्लास भी मिल गई थी, तो विच वाज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही थी उस क्लास में। देन आई गॉट वन क्लास, देन टू क्लासेस। सो मुझे ये बताया गया कि मेरे फाउंडर ने और कुछ लोगों ने कि आप इस क्लास में भी जाके देखो, इस बच्चे के कितने बिहेवियर्स आ रहे हैं, आप वहां भी जाओ। सो समवेयर कहीं ना कहीं पे कुछ और भी टीचर्स थे जो वहाँ बहुत अच्छा काम करते थे। इट वाज नॉट ओनली मी, I would say that it was a team very The beautiful, team. but as a person, I Mhm. was facing lot of opposition की थोड़ा ये आ गई है, and she's trying and saying कि Yeah, मुझे yeah, ये आता है, मुझे yeah, I वो agree. आता है। So Hmm. so then again I went to my leader and says like, हाँ तो पर्पस है ना, तो तुम पढ़ो फिर। And I was like, now I'm 40 years old, I don't want to study. And so like, you decide, or you can feel, and then that's where I started studying again. I did my autism में किया 2 साल पहले। Hmm. फिर उसके बाद में कुछ कभी कभी क्वेश्चंस हमारे सेंटर में होते थे कि ये उसमें होता है, ऑटिज्म में होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम में नहीं होता। देन आई डिड माय बीएड इन intellectual disabilities also. Wow. So What an inspiration. yeah, Never so give up. Hmm. and the best part was my daughter was in 12th at that time। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी बेटी 12th में थी, तो हम दोनों बैठ के रात को कंपटीशन करते थे कि कौन ज्यादा पढ़ेगा, कौन ज्यादा रहेगा। सो हम लोग को करते थे। एंड देन उस टाइम तक बीएड वाज, जब मैंने की है बीएड, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला कर रहे थे बीएड। अच्छा. द जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की थी, वेयर आई गेव द एग्जाम एंड देन आई गॉट इनटू इट, तो वो मैंने फिर इंक्लूसिव एजुकेशन वाली की थी, जहाँ पर हमें कहा गया कि कौन सा सब्जेक्ट आप अपने उसके लिए लेंगे। तो मैंने ना साइंस, बिकॉज मेरा साइंस बैकग्राउंड है। एंड आई काइंड ऑफ आई नाउ, जब मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट था, पर जब फिजिक्स पढ़नी पड़ी तो धुएं छूट गए कि भाई मेरे से फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही है। एंड देन माय, आई स्टिल रिमेम्बर माय डॉटर हेल्पिंग मी टू स्टडी फिजिक्स एट दैट टाइम। सो शी वुड हेल्प मी विद, मम्मा केमिस्ट्री का वो ये कर लो, वो कर लो, एंड शी सजेस्ट मी आप ये सारे नोट्स यहाँ भी बना के टीम एफर्ट कमरे हो रहा में था. रख लो। यहाँ भी टीम एफर्ट हो रहा था. हाँ, पूरा टीम एफर्ट हो रहा था। So my daughter was supporting me a lot, and we would have like a competition, कौन पढ़ेगा ज्यादा, रात को कौन नहीं सोएगा। So I guess वो भी एक टाइम था। Yeah. And I think when I look back, everything as a purpose in life, और फिर gradually I think when I was, and then I told my founder कि भाई देखो अब तो मैं पढ़ लिख भी ली, अब आप मुझे ना कुछ कोई पोजीशन दे दो, कोई कुछ दे दो, so that I'm able to tell everyone with Yeah. some authority. So otherwise I'll go here from here, because तब तक मेरे को भी हो गया था कि अब भैया मैं पढ़ लिख ली हूँ। तो the school where the principal was there, Sugrit was in the resource room, I got a offer from there also कि आप अच्छा. आके हमें ज्वाइन कर लो, तो आप हमारा रिसोर्स रूम देखो अब। तो फिर मैंने बोला मुझे तो वहां से भी आ रहा है, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं वहां जाऊंगी। सो नहीं 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 रो, एंड देन द बोर्ड डिसाइडेड टू मेक मी वाइस प्रिंसिपल एट दैट टाइम, दैट वाज सेकंड इन कमांड। Wow. सो ऑल ऑफ अ सडन आई बिकेम All of वाइस। a sudden, मतलब कि कोई ले नहीं रहा था, then you became the हाँ, vice. आई बिकेम द वाइस प्रिंसिपल, बिकॉज़ दे वांट, उनको था कि नहीं आप छोड़ के नहीं जाओ। तो Correct. वाइस प्रिंसिपल बन गए, फिर भी थोड़ा थोड़ा रहा, कुछ रहा, अपनी जगह बनाने में वक्त लगा। बट नाउ टुडे इफ आई लुक बैक, कोविड भी हो गया, सब कुछ हो गया, वहां भी काफी प्रॉब्लम्स आई, बट आज अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए जो सौरभ है वो एक एनजीओ नहीं है, दैट्स माय हैप्पी हाउस, माय हैप्पी प्लेस, वेयर आई फॉरगेट एवरीथिंग, and the entire staff, my colleagues, everyone over there is my family, where we feel कि कुछ भी है, हम लोग अपने घरों से निकल के, मोस्ट ऑफ देम या शायद सारे, पता नहीं, शायद कुछ होंगे, पर हमेशा सब लोग बोलते हैं कि अगर थोड़ी छुट्टियां हो जाती है ना, सोचते हैं हम सौरम कब जाएंगे। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि Hmm. जब हम सुबह उठकर अपने काम पे जाने के लिए रहते हैं कि चलो
बिकॉज घर में भी सबकी देखिए प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चलती हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। और खास करके अगर स्पेशल बच्चा हो तभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं रहे। हम्म। सो आई थिंक मेरा भी एक बर्नआउट आया मेरे बेटे के साथ। I'll be very honest with that. Although I was doing everything, लेकिन जब वो ग्रो किया, बड़ा हुआ, सीजर्स आने शुरू हुए और कुछ एंजाइटीज आनी शुरू, कोविड में उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया बहुत, क्योंकि वॉज अ वेरी सोशल चाइल्ड, उसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता था। जब उसे बंद किया गया तो एंजाइटी आनी शुरू हुई, विच वी या स्टिल डीलिंग विद इट, वी स्टिल डीलिंग विद दैट अ लॉट। हम्म। और उसमें कहीं ना कहीं पे मुझे जो सपोर्ट सिस्टम मेरी सौरव फैमिली से मिला है उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं भी डाउन गई, खुद थोड़ा लोअर हुई और कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई घर में। तो लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये जो मेरा वर्क है, ये बच्चे हैं, मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे होल्ड करके रखा। एंड टुडे आई कैन से दैट आई मेरी लाइफ में एक और एक एड ऑन हुआ मेरे मिशन में, कह लीजिए कि टू टॉक विद मदर्स, यस यस, striving आई talk to आई be एग्री। resilient, because हम्म। no matter आप कितने बड़े वॉरियर हो, कुछ एक टाइम आता है जब आप बीच में डिप हो जाते हो। कुछ करेक्ट। एक टाइम आ जाता है। मैं अपने आप को एक वॉरियर बोलती हूँ, पर फाइटर हूँ मैं, एडवोकेट हूँ बहुत स्ट्रांग। पर मेरा भी एक टाइम आया कि जब मैं डिप हुई और मुझे विक्टिम मोड में भी गई और मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो एक्शन लें और वो ऐसे करें और वो ऐसे करें। And then gradually, after a span of few years, I realized कि it's you. Resilience means you have the power to bounce back, and the responsibility is 100% yours, किसी और की नहीं। किसी और की नहीं है। And So as a अब, special mother, you have to be resilient yeah, all the time. There all the is time, no and sometimes you need a relationship. holding hand, you need a thriving talk to bounce back. True. So now I have become, I've started playing one more role to Mhm. support the mothers, younger mothers especially, because Yes. sometimes I feel we lose out on the, कि मेरे लिए लाइफ में मेरा बच्चा important है, this important है, that important है। मैंने अब ये realize किया, self care, self love, compassion, you have to keep filling yourself also with that part, then only you can give it to others, because कहीं ना कहीं पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो आप एक लेवल, जैसे मेरा बेटा जब 17-18 साल का हुआ, तो कहीं ना कहीं पे मुझे वो शुरू हो गया था, ये फील होना कि अब मुझसे ये नहीं हो रहा, पता नहीं ये क्यों कर रहा है, मैं चाहती हूँ करना पर आई डोंट नो। तो वो पार्ट मैंने अब ऐड किया अपना लाइफ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल माय मेस हैव बिकम द मैसेज to Yeah. the to whatever, and it has, I have found a purpose. I think जो कुछ भी हो रहा है, for me to understand, and have empathy for other mothers, because क्योंकि मैं एक वॉरियर थी ना, तो मैं मदर को बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है फैमिली में, आपको ये भी करना पड़ता है। बट नाउ आई थिंक आई अंडरस्टैंड when they come from a level where they feel depressed, where they feel, whatever their family problems are, I can now have empathy towards them and say like, no, I hear you, I see Mm, you, mm. I'm holding your hand, we can together still work out. Correct. सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे अब हमारे पास, कोविड से पहले हमारे पास 180 थे, कोविड के बाद में बिल्कुल डिप हो गए, फिर 40 पे आए, 40 बच्चों हो गए हमारे पास। अभी फिर ये पिछले 1.5-2 सालों में वी आर अगेन बैक टू 190 आई गेस। एंड अब जो मेचोरिटी बच्चे हमारे पास आए हैं वो ज्यादातर ऑटिज्म के ही आए हैं। आई Mhm. थिंक कहीं ना कहीं जो हमारे पास पुराने बच्चे थे जो बहुत अच्छा वोकेशन का वर्क करते थे, वो घर में रह गए, नहीं वापस आए। और मुझे हम लोग अब नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। आई Yes, ऑलवेज व्हेन yes. आई केम टू दिस सेंटर, तब वहाँ ज्यादा बड़े बच्चे ही ज्यादा थे, बिकॉज माय फाउंडर स्टार्टेड विद द वोकेशनल सेंटर Hmm. एंड बढ़िया। द स्पेशल ओलंपिक फादर, बिकॉज शी वाज द वो नॉर्थ एरिया चीफ वहाँ पर स्पेशल ओलंपिक्स फादर। अच्छा। तो उनके लिए वही था कि जो बच्चे बाहर जा रहे थे उनको वोकेशन देने के लिए ये शुरू हुआ था। सो वो धीरे धीरे छोटे बच्चे भी, हम लोग भी आए, सब आए हम लोग।
तो मैंने जब वहां पर सेंटर में गई तो आई स्टिल रिमेम्बर बिग बॉय 6 feet 1 inch tall, वेरी हैंडसम. एंड आई सेड अच्छा आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो. एंड देन ही सेड लाइक हाँ हम तो पर बच्चे हैं ना, बच्चों को तो मैम का कहना है मैम डांटेगी तो सुना. एंड ही वाज अबाउट 24 25 at that. I Oh, looked at him and I said, is this going to be future of my child too? wow. No, 24-year-old saying so sweetly, तो बच्चे हैं Hmm. ना तो मैम डांटती है, अब गलती करोगे तो मैम तो डांटेंगी डांटेंगी. एंड मुझे ना बहुत उस टाइम पे टच करा. और Right. मैंने उस टाइम पे डिटरमिन किया था कि मेरा बेटा 21 22 years के बाद में स्कूल नहीं जाएगा. He will go to some place. I don't know whether he will sit or workplace or whatever. मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था मेरा बेटे का क्या लेवल होगा. पर कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि उसका because I had come out of lot of behaviors Yeah. as we shared कि Yes, yes. मुझे भी उसका मतलब ये पता चल गया था कि मैं एम नॉट हैविंग बिग ड्रीम्स फॉर हिम कि वो कॉलेज जाएगा ये वो जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि अगर हम उसको थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा देते हैं तो उसको बिहेवियर्स डिफिकल्ट बिहेवियर्स आते हैं. तो Mm-hmm. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस. तो वो वहां पर जब ये डिटर्मिनेशन हुआ कोविड से पहले, मैं हमेशा अपने स्टाफ से बात करती थी कि हमें कुछ तो करना है. यू नो ऑल दीज 30 30 year old ones coming to special school is something I'm not enjoying. So अभी हमने अप्रैल में ऑटिज्म हमारा जब अवेयरनेस मंथ था, उसमें Hmm. हमने सभी 18 साल से ऊपर बच्चों को ग्रेजुएट किया. अ प्रॉपर Hmm. ग्रेजुएशन सेरेमनी विद the quotes Caps and and all, huh? caps and Tassels. everything, and we Wonderful. graduated there. Yeah. Wow. And हमने उनको ग्रेजुएट करके कहा कि no I longer. would like to have the pictures of that I will graduation share. I ceremony. will definitely share that. और हम लोगों ने हमारे पास 48 बच्चों को हमने ग्रेजुएट किया. 48 बच्चों को हमने ग्रेजुएट किया जिनके पेरेंट्स आए और वो रोए. और उन्होंने कहा हमने कभी ये ड्रीम में नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे ऐसे लेके डिग्री लेंगे, यू ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द स्कूल Hmm. प्रोग्राम्स. एंड वी ऑल माय कलीग्स मेड इट सच अ ब्यूटीफुल इवेंट कि उन्होंने ना वो बचपन से, जब बच्चा डिग्री लेने जा रहा था तो एक बचपन की फोटो, फिर एक सौरम की फोटो, फिर एक बड़े की फोटो, फिर वो वर्क करती हुई कोई वोकेशन की फोटो, something like a very nice photograph. So जो वो जा रहे थे, we were saying about the child and there was like पीछे स्क्रीन पे Beautiful वो memories. फोटोग्राफ्स चल रही थी. Wow. So it was a very beautiful and a heart-touching moment for Yes. every parent. We all cried a lot that day, as all parents, because I always say I'm a parent first. Yeah. So हमने, even if I'm talking now, I'm getting very emotional about it. So अभी हम लोग उनको हमने उनका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया. And we say these are your seniors, and they still come in the uniform because we don't want to get into the confusion of Hmm. ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना. But they're all working and we want to give them This is stipend what and we everything. actually are looking for, isn't it? Like a Yeah. special parent. So Hmm. I would definitely put your address की जो चंडीगढ़ या उसके आसपास के लोग जो हैं, they can approach you. क्योंकि ये जो चीज है ना कि what after in adulthood क्या करेंगे बच्चे, तो ये बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा एफर्ट आपने लिया, बहुत अच्छा किया ये कि adults with autism या adult with special needs then they can also have a life. Yeah. ये So बहुत बड़ी बात as a parent, you, me, everyone is. है, जैसे everyone. हमारा बच्चा 17 18 साल का होता है, 14 15 साल से ऊपर में हम सोचना शुरू कर देते हैं what after us. So I think I'm that. पेरेंट्स सब मिलके बनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर till that doesn't happen, I've also made a group home. So right now I'm in a accommodated अच्छा. accommodation. This is also a group home. हम्म. And I live with शुरू किया था पर अभी 2 बच्चे क्योंकि बहुत काम हो रहा है. But then soon we're going to have a bigger place and we're going to have 4 5 where my son is going to live with his friends as a family That is and will be taken care of. तो कनाडा एंड ऑल में बहुत ये वाला कॉन्सेप्ट यूएस में ग्रुप होम्स का चल रहा है. ग्रुप होम्स का. पहले हाँ. रेजिडेंशियल होम्स एंड देन ग्रुप होम्स. सो दिस इज व्हाट इज माय प्लान आल्सो. सो आई हैव बीन 2.5 years से ज्यादा हो गए हैं मुझे ये खुद से सीखने में, एक्सपीरियंस करने में, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस इज माय गोइंग टू बी माय फॉर माय सन. एंड मेरे बेटे के साथ साथ कुछ बच्चों के साथ और भी आई एम श्योर इस तरीके से हेल्प हो सकती है. या my son also needs a family. I think he also finds a connection
जब सब लोग एक जैसे होते हैं, कम्युनिटी बनती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। Somewhere they see each other, they understand each other. I agree. एंड इन द पेरेंट्स ऑल्सो आई फील, ऐसा नहीं है कि हमारे, मेरी बेटी है वो इज लाइक अपने बेबी ब्रदर को, शी इज लाइक बहुत प्यार करती है, एंड समटाइम्स बोलेगी कुछ, मैं अगर गुस्से से कुछ कह भी दूंगी, मैं ले जाऊंगी इसको अगर आप ऐसे बोलो तो। पर फिर भी मैं यही बोलती हूँ, आई नो व्हाट आई डन इन माई लाइफ, यू नो आई सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सोशल पार्टीज में नहीं जाना, अपने आप को जैसे रिस्ट्रिक्ट करा, हम्म क्योंकि आई वांटेड टू बी विद agree माय करना सन पड़ता है, एंड विद बिल्कुल माय आई डॉटर। एग्री विथ यू। फिर ऑल लोग आपको तरह तरह के एक्सक्यूजेस करके आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, देन यू स्टार्ट बिकमिंग जस्ट एक्सक्लूडेड, पूरा एक्सक्लूजन हो जाता है। सो या आई कंप्लीटली आई इंक्लूजन जब अपन बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड, इट्स अबाउट द फैमिली। सो समटाइम्स आई वुड यू नो, मेरी इच्छा क्या होती थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका कोई फ्रेंड्स या यू नो रिलेटिव्स कहीं लोग जाते हैं घूमने या कुछ गेट टुगेदर्स करते हैं, तो आप मना करते रहते हो और एक टाइम आता है कि वो आपको पूछना बंद कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर मेरे ही हमेशा एक ये रहता है कि यू नो, जो वो पूछते हैं ना, तो एक आनंद और एक सुकून मिलता है, क्यों आप उस आपके बारे में सोचा गया, शायद आप कभी भी नहीं आ जा पाओगे या शायद आप थोड़ी देर के लिए बात करोगे, बट यू स्टिल फील इंक्लूडेड। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग। और कभी कभी ये सोच के कि कोई बुलाता नहीं है कि वो तो मना ही करने वाले हैं, तो रहने दो। सो वो आई फील, I hear you, I hear you. yeah. So I think with that kind of exclusion that happens within the families, within the It does. friend circles, within the, you know, even if it's not even the child, it's about उनको बुलाएंगे पार्टी में तो नहीं आएगी, तो अब क्या होता है धीरे धीरे आप एक्सक्लूड। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एज मदर्स आल्सो, व्हेन आई स्पीक टू यंगर मदर्स, आई एम टेलिंग देखो, एक लेवल आएगा, अभी तो आप बहुत बोलते हो नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कभी कभी एक मोमेंट आता है जब आपको ये फील होता है कि आप तो टोटल एक्सक्लूडेड हो गए हो, आपको कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है। पर कहीं ना कहीं आपने भी उस चीज को कंट्रीब्यूट किया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तो लेकिन हाँ, आपके रीजंस बिल्कुल वैलिड है, वैलिड थे आप और जस्टिफाई कर रहे हो, अगर आपकी जगह में कोई भी होगा वो भी बिल्कुल करेगा। बट बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू शो यू कि एक टाइम आ सकता है, तो चाहे 3 लोग हो चाहे 4 लोग हो, you know, for yourself, not even for your child, please look into it। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला पार्ट मुझे अब जाके समझ में आया कि मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई, मैं तो, सब लोग कहीं के कहीं पहुंच गए, एंड एवरीवन अप्रिशिएट्स, रिस्पेक्ट्स मी, Yeah. एक्नॉलेजेस मी, बट स्टिल आई एम अलोन, Yeah, आई एम अलोन इन माय जर्नी। तो कहीं ना I कहीं पे know. सब चले जाते हैं और जो प्राइमरी चीफ केयर गिवर रहता है, वो और वैसा ही रहता यूजुअली मदर होती है, वो कहीं ना कहीं बहाने बना बनाकर अकेली हो जाती है। एक लेवल आता है जब वो, हमें मन भी करता है नहीं भी करता है, इस दुविधा में हम फंस जाते हैं। और कभी कभी मेरे जैसी बंदी ने तो ये कह दिया मेरा तो मन ही नहीं करता, है। लाइक आई तो डोंट एंजॉय ओनली लाइक, करेक्ट, सेम सो आई मच हैव आई ऑल्सो आई थिंक रहती कि है। एज की वजह से या हम लोग की जो जर्नी इतनी मतलब वी एंजॉय दैट, we are okay. I won't say that enjoy, but we are okay. Yeah, it's okay, it's So fine. now also, if somebody tells me to go to a party, I have 1,000 excuses why not to go. But now I have, I'm making even ever teeny mini efforts, but I'm now happy also being alone. So अब मुझे कोई बहुत ज्यादा कहो, पर एक फेज आया था जब बीच में I had this, you know, a lot of this of feeling कि I need support, somebody needs to stand by me or this and that, blah But blah. you are, if you, I think very rarely this happens, that, so there is a support. Yeah. Very rarely. Most of the time, even if you are looked, you will appear like that you're supported, but actually you don't have any support. It's just you and you and you and your child. That is the truth. And better to accept it and try your best. That's what my observation is. Yeah, the financial support, everything, the provider can be there by the, Yeah. you know, by the fathers and everything. But still, as you rightly said, like कहीं ना कहीं पे वो responsibilities share करना, ये सब वो कुछ नहीं करना, होता, नहीं हो वो पाता, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। हम चाहते हैं, हम बहुत कोशिश भी करते हैं, और कुछ एक लेवल तक होता भी है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी
कुछ। मदर्स की ही होती है। हाँ शायद ये मेरे ख्याल से जो, लेकिन अब मैं जैसे अब यंगर मदर्स और हाँ, यंगर थोड़ा पेरेंट्स को चेंजेस, देखती हूँ, वो चेंज हो गया है। थोड़ा चेंजेस है. हाँ वो I चेंज हो had a गया father on my show, है। Special Hero, हम्म, and he also like he supports his wife very much. हम्म, मतलब बच्चे को स्कूल लाना ले जाना, कुकिंग, फिर जो बाहर की आउट एक्टिविटीज हैं उस बच्चे के लिए. He is very active. He's very active, very supportive. He's younger, like the child is 11 years old or something. yeah. Yeah, I know the younger parents are definitely, even if you see the neurotypical generation, the boys are, जो अब नए वाले बच्चे Hmm. हैं वो अपने बच्चे के फादर, मतलब उनको वो दे वांट टू एंजॉय Yeah, yeah. लाइफ ऑल्सो, और वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। पर थोड़ा पहले वाला था कि वो होता था कि मदर इज देयर और टू केयर True, गिविंग, एंड true. It is फादर इज still, देयर एज अ I would say प्रोवाइडर। कि ज्यादा तो वही है, predominantly it is the mother who is the primary caregiver, but yeah, fathers are also coming up and they are also sensing that the responsibility what they have, which is highly appreciable. And we encourage the fathers, the family members, the extended family members, because one of the mothers, she said that she is well supported by her extended family. So that is a very good thing, because don't isolate the mother, the parent who is all alone in this journey, which ideally should not be a lone journey. अभिलाषा जी, पता है क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट नहीं होती, पर कहीं ना कहीं पे वो जो They don't know how to do it. फिजिकल सपोर्ट चाहिए होती है ना, और हाँ, या इमोशनल सपोर्ट जिस लेवल पे बच्चे को देखने के लिए चाहिए होती है फ्रॉम पीपल अराउंड, वो हम्म. कभी कभी उस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। करेक्ट, करेक्ट, अ, जैसे मैं मेरे बच्चे को देख रही हूँ या कर रही हूँ, जैसे समझ रही हूँ, हाँ, थोड़ा वैसा, हम बिल्कुल वैसा नहीं पर थोड़ा वैसा थोड़ा वैसा कोई कर. हो और भी जो हमारे बच्चों को देखे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम्स बनाने भी पड़ते हैं, और बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। और कभी कभी मैंने देखा है कि जैसे हम फैमिलीज हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, हम्म. तो ट्रू. वहीं से कभी कभी सपोर्ट्स भी आती हैं, मदर्स मदर्स को सपोर्ट करती हैं। तो आई आई ऑलवेज फील कि ये जो हमारा सिस्टर वर्स है, विमेन गैंग है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो या, सपोर्ट ईच अदर करे एक दूसरे को। सो आई थिंक हमारा चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से जो यंगर मदर्स आ रही हैं वो रियलाइज भी करती हैं, तो हम लोग कभी कभी बच्चों को साथ में लेके पिकनिक जाओ, मूवी जाओ, या खुद जाएंगे आज, हस्बैंड्स देखेंगे तो यंगर मदर्स लाइक नहीं नहीं नहीं, yeah, सब yeah. Younger mothers are हम doing. लोग I जाएंगे। have, I had this, privilege to spend some time with the younger mothers, like children are 9, 10, 11. So I could feel that कि उनका जो gang वाला जो ये है ना, that is हाँ so नहीं, हमें तो nice. जाना है, ड्रेसअप होना है। हाँ, 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 आई they लुक do एट that. देम, आई आल्सो स्टार्टेड, ऐसा नहीं है, उनसे भी मैं भी सीखती हूँ कि देखो कितने अच्छे से Correct. I even I तैयार होते enjoy it. हैं, I truly अप्रिशिएट करते enjoy it. हैं, तो अच्छा लगता है उनको देख के। हाँ, और कहीं पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, इंक्लूजन के लिए करना चाहिए काम, बट टुगेदर वंस वी यू नो बट आई correct. रियली फील कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो जर्नी है थोड़ी मुश्किल है। कभी कभी सोचो, बहुत लोगों के घर में कोई बीमार हो जाता है तो एक महीने के लिए वो बिल्कुल कट हो जाते हैं, एंड देन दे हाँ, आर दे और फील हम लोग कि तो पूरी लाइफ के लिए ही है. तो ये जो हमारी पूरी लाइफ के लिए जो ये जर्नी चलती है, वहां पे ये नॉर्मल लाइफ बन जाती है लोगों के लिए कि भाई अब ये तो आपकी लाइफ है ना, तो अब आप बाकी चीजें तो करोगे। करेक्ट. वेरएज अगर एक दो महीने के लिए कोई बीमार हो गया घर में, एक फैमिली मेंबर, तो कैसे उन वो लोग कहते हैं बहुत वो अच्छा नहीं मन एग्जाम्पल दिया करता, है हमें लोगों वो को मन। सोचने के हाँ, लिए. तो मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि आप 2 महीने में, 1 महीने में कितने परेशान हुए। पूरी जिंदगी उसको आप याद रखेंगे कि मेरे साथ 2 महीने में ऐसा हुआ था. बट हाँ देन अंडरस्टैंड कि ये हमारी पूरी जिंदगी ही ऐसी बीत रही है. तो we do need more understanding from society, and the different families. There is no doubt about that. But Sangeeta, you have inspired not just me as well. And I'm very sure you are inspiring the 190 families already. And there are so many more before and after, that how to, have the message from the mess. As you said, it was so beautiful, and heaven in your home. So you have transformed your life, and the journey is still going on. It's continued as
we take our last breath, it will be बहुत ही अच्छा लेकिन मीनिंगफुल लाइफ है ये. एक बात तो है कि जो लाइफ विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है, पीपल अराउंड यू, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ. जो आप दूसरे लोग जो सर्च करते रहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, प्लीज आप आइए, जो स्पेशल नीड्स पीपल है, बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए. You'll have a meaning in your life. Thank you so much, Sangeeta, for joining in. And I would like your all the details of the website of the school and the institute, so that कि जो parents जो आपके in and around हैं, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के, they can approach you with a कितनी खूबसूरत बात आपने आज बताई है, जो ग्रेजुएशन और बड़े हो गए, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को आपने जितने अच्छे से लिया है और उसको कन्वर्ट किया है. You at 40 you did your studies, so inspiring. हम जो स्पेशल नीड्स मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके लिए कोई उम्र नहीं है. Even at 50 you can do stuff, even at 60 you can do stuff. So this is what our life is, which is very meaningful, very inspiring. Thank you so much, Sangeeta, for joining in. Just keep on your journey, keep walking. I'm very sure a lot of you will have the passengers with you. Thank you so much. Thank you, Abhilash. Thank you everyone everyone for the best. I know कहीं ना कहीं पे everyone is playing their role. कोई काम कर रहा है, कोई messages society में दे रहा है. We all need all people to work towards it. So thank you so much. You are doing a great job. कहीं ना कहीं पे connect करना, कहीं लोगों को जोड़ना. So all the best for your endeavors. Thank you. Everyone is trying their best. That's what I feel. Yeah, yes, I would say that. Thank you everyone for tuning in and listening to Sangeeta, who has, the whole conversation was just like talking to a good friend. And we definitely we have just spoken over phone, never met. Hopefully once, sometime we will definitely. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.